صحابہ بھی لفظ درست ہے، صحابہ بھی درست ہے، زیر سے بھی اور زبر سے بھی۔ یہ جو اکثر آپ کو ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، آپ سمجھتے ہیں کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے، نہ یہ آیت ہے نہ یہ حدیث ہے، یہ ایک سلوگن ہے، خلافت راشدہ حق چار یار پانچ تن پاک، جس طرح یہ سلوگن ہے یہ بھی ایک سلوگن ہے الصحابۃ کلہم عدول۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث قبول کرنے میں سارے صحابہ عدول ہیں، حدیث میں کسی صحابی سے جھوٹ ثابت نہیں، یہ اصول حدیث ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہوتی یا وہ گناہ نہیں کر سکتے یا وہ معصوم ہے، نہیں۔ ہاں اس معاملے میں وہ معصوم ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی بات انہوں نے مکس کر کے آپ کو نہیں بتائی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیوں معصوم ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ نے اس دین کی حفاظت صحابہ اور اہل بیت سے ہی تو کروائی ہے۔ دوسری بات، انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارا ہر جرم معاف ہو سکتا ہے، ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن جس نبی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی، اگر ہم نے اس پہ جھوٹ باندھا نا پھر ہم مارے گئے۔ بعد کے لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل سکتا ہے، ہمیں اللہ نے نہیں چھوڑنا کہ تمہیں تو میں نے نبی علیہ السلام کا ساتھی بنایا تھا، تم نے اس نبی پہ جھوٹ باندھ دیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس گناہ کی انٹینسٹی اتنی کوٹ کوٹ کے ان کے دلوں میں بھری تھی نا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بچ جانا بچ جانا بچ جانا۔ مسلم کی پہلی حدیث مولا علی سے یہی ہے، بخاری میں بھی ہے، دیکھنا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو۔ چند احادیث ہیں جو متواتر ہیں، جو سینکڑوں صحابہ نے روایت کی اور ہزاروں تابعین نے، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، جو بخاری میں بھی مسلم میں بھی دنیا کی آلموسٹ ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب ایک بات کی جب لکیر اتنی بار پیٹی جائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں، بس صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ معافی ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ کے نبی پہ ہم نے جھوٹ باندھ دیا سانو نہیں اللہ نے چھڑنا، بادل تو چھڑ دے گا، سانو نہیں چھڑتا۔ یہ وہ چیز تھی جو صحابہ کرام کو جھوٹ نہیں بولنے دیتی تھی۔ سب سے بڑھ کر حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی لاکھ اختلافات کے باوجود مولا علی پہ کبھی جھوٹ نہیں باندھا۔ قتل مار والی حدیث پہنچی، اس کی باطل تعویل ضرور کی، حدیث کا انکار نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا یار ریڈ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم حضرت معاویہ کہتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کتنے ایسے کام کیے جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں، تو پھر ان کی حدیثیں کیوں لی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں انہوں نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے 4129، تابعی ہیں محمد ابن سیرین حدیث بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں وَمُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، اور معاویہ حدیث کے معاملے میں جھوٹے نہیں تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث بیان کی، اس جملے میں انہوں نے حضرت معاویہ کی تعریف بھی کی اور حضرت معاویہ کی جو غلطیاں ہیں ان کی جسٹیفیکیشن اس اعتبار سے پیش کی کہ حدیث کے معاملے میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور معاویہ حدیث کے بارے میں متہم نہیں تھے، ان پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے حدیث گھڑی ہو۔ یہ بات انہوں نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی سے حدیث بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں کی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ وہ حدیث بیان کر رہے ہوں کہ حضرت علی نے فرمایا، اور آگے کہیں کہ حضرت علی پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو حدیث کے معاملے میں۔ حضرت معاویہ کے لیے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین کے ہاں، صحابہ اور تابعین کے ہاں، ان کے جو پولیٹیکل جو سٹانس ہے اس کی وجہ سے کئی چیزیں لوگوں کے دلوں میں کھٹکتی ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ میں حدیث بیان کروں تو لوگ کہیں یہ تو معاویہ کی حدیث ہے۔ تو حدیث کے معاملے میں چاہے حضرت معاویہ ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ایون بسر بن ابی ارطا، ایک نٹوریس ترین پرسنالٹی، صحابی ہے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا ہے، لیکن آپ اسماء و رجال کی ساری کتابیں اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی کی تقریب التہذیب اٹھائیں، تہذیب التہذیب اٹھائیں، اسی طریقے سے امام ذہبی کی کتابیں اٹھائیں، سب لوگ کہتے ہیں سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی خیر کی رتی اس بندے میں نہیں تھی۔ یہ وہی ہے جس نے حضرت معاویہ کی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حضرت علی کے علاقوں میں گھس کے شیعہ علی کو قتل کیا، ان کی خلافت میں جن بچوں کے نام علی ہوتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتا تھا، اتنی نفرت اہل البیت سے۔ لیکن آپ مسند احمد کھولیں، ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے مسند بسر ابن ابی ارطا۔ اب وہ شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اس ظالم کو تو تم بھی مانتے ہو تو حدیثیں کیوں لی ہوئی ہیں؟ حدیثیں کہاں سے؟ یار ایک حدیث ہے مسند احمد، یہاں ہمارے پاس پڑھی ہے، اس میں وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ میری فیوریٹ دعاؤں میں سے، اے اللہ ہمارے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے۔ یہ انگلش میں محاورہ ہے،
all is well if end is well. तमाम कामों का अंजाम बेहतर कर दे और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अजाब से बचा ले। ये दुआ बुसर बिन नबी अरता ने रवायत की है, मुस्नद अहमद में भी है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है। और इमाम हाकिम जो सही शियाने अली में से थे, उन्होंने भी हदीस ली हुई है इसकी, हजरत मुआविया से भी ली हुई है, इससे भी ली हुई है। ये हार्ड लाइनर है हजरत अली के एतबार से, इसलिए इनके ऊपर शिया होने का इल्जाम भी लगा। अहले सुन्नत के जो चंद मुहद्दिसीन जिन्हें शिया कहा गया, और शिया उन मानों में नहीं कि राफजी, शिया वो जो हजरत अली की बाकी सहाबा पे फजीलत के कायल हैं, उनमें इमाम हाकिम भी हैं जिन्होंने अल मुस्तदरक लिल हाकिम लिखी। लेकिन उन्होंने हजरत मुआविया से भी हदीसें ली हैं, हजरत मुगीरा से भी ली हैं, हजरत बुसर इब्न अरता से भी ली हैं, लेकिन उनको सुन्नी इसलिए माना जाता है, बहरहाल वो चारों खुलफा को मानते हैं। पहले हजरत अबू बकर की शान में, हजरत उमर, उस्मान, अली, फिर हजरत उस्मान के दिफा में भी हदीस लेते हैं। रवायत हदीस में तमाम सहाबा की हदीसें ली जाए, ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं है ये पढ़ के तो आगे कुछ और निकाल रहे होते हैं। जिस तरह हमारे लोग जो है आयत पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, और कहते हैं इससे इमाम हनीफा की तकलीद वाजिब होगी। उलिल अम्रि मिनकुम में इमाम हनीफा कहां से आ गए? ये हुक्मरान का जिक्र है, और वो भी ओपन लाइसेंस नहीं आ गया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल। हुक्मरान से भी झगड़ा हो सकता है, फैसला फिर भी किताब और सुन्नत अल्लाह और उसके रसूल से होगा, अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप देखा करें वो बात कौन सी हो रही है। सही मुस्लिम में जो हदीस है, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। इस हदीस के हिसाब से तो हज़रत मुआविया का मौला अली से किस दर्जे का बुग़्ज़ था, इसके बारे में मैं काफी दफा बोल चुका हूँ कि जो शख्स भी दुश्मनी या बुग़्ज़ रखे उसका ये मतलब नहीं है कि उसको उससे जाती को दुश्मनी होगी। उसको तावील की गलती भी लग सकती है, दुनिया की मोहब्बत का गलबा भी हो सकता है। हज़रत मुआविया की तो आपको मिसाल वैसे ही समझ नहीं आएगी, ज़ाहिर है कि उसके बारे में तो बड़ी ज्यादा अहादीस और फिर हार्ड लाइन आप ले लेंगे। मैं आपको कहता हूँ इनको तो छोड़ दें। सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा, क्या उन्होंने हज़रत अली से जंग नहीं की है? तो हम क्या कहेंगे कि वो मोमिना नहीं थी? जबकि बुखारी में अम्मार इब्न यासिर का खुतबा मौजूद है कि आयशा दुनिया और आखिरत में तुम्हारे नबी की बीवी है, यानी उनका मर्तबा कम नहीं हुआ। अम्मार इब्न यासिर से बड़ा कोई शिया है ना उस जमाने का या आज का, तो क्लेम करे जरा। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। जो हजरत अली के इतने खास हैं कि वो कूफे में उनको भेज रहे हैं हजरत हसन के साथ कि आप जाके लोगों को आमादा करें कि ये जो हजरत आयशा, तलहा और जुबैर आ रहे हैं, इनके इस फितने को आपने रोकना है, जंग जमल जो हो गई बात। लेकिन आखिरत में मर्तबा उन्होंने काम नहीं किया। उसमें क्या अल्फाज है? अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम आयशा की इताअत करते हो या अल्लाह की इताअत, क्योंकि इस वक्त खलीफातुल मुस्लिमीन की इताअत अल्लाह की इताअत है। हजरत आयशा का जो वो खलीफा वक्त के खिलाफ खुरूज है, उसको अम्मार इब्न यासिर ने उनके बेईमान होने से तशबीह नहीं दी, ना उसे बुग़्ज़ अली करार दिया है। ये करार दिया है कि उनको गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर एक बात गलत समझ आई है। जंग जमल में मौला अली के मुखालिफ साहबा का भाई मौला अली ने माफ कर दिया उनको, सबके लिए दुआएं की है। हाकिम में मौजूद है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, फ़ज़ाइल सहाबा में, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कुरान में सूरतुल हिज्र में जो आया कि अल्लाह ताला अहले ईमान के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नफरतें निकाल देगा, फिर वो तख्तों पे बैठे होंगे, आमने सामने टेक लगाए। मेरे तलहा, जुबैर और उस्मान के बारे में मसला तो मामू का है ना, इनका तो कोई मसला नहीं। अगर कोई शख्स दीन के तरीके पर हुकूमत करता है तो उसे खलीफा का दर्जा दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल खलीफा ही होगा वो। उमर बिन अब्दुल अजीज मरवान का पोता है और हम उसे अमीरुल मोमिनीन और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम भी कहते हैं, 5वें खलीफा राशिद कहते हैं, बल्कि 6ठा खलीफा राशिद हसन इब्न अली के बाद। और खिलाफत सिर्फ 2.25 साल है, 99 हिजरी से 101 हिजरी तक। और इस्लाम का पहला मुजद्दिद कहते हैं। ये वो मुजद्दिद है जिसे सुन्नी और शिया दोनों मुजद्दिद कहते हैं। ये लादा बात है, बताते नहीं कि उसने तजदीद कौन सी की है। मुजद्दिद आके खराबियां दूर करता है ना, वो गंद जो साफ किया है, कहते ना इंजीनियर साहब गंद पे बैठते हैं, तो उमर बिन अब्दुल अजीज किस गंद में बैठ के उन्होंने वो गंद साफ किया था? बनु उमय्या, वो कौन सी खराबी थी? हुकूमती खराबियां उन्होंने दूर की। वो खलीफा कहलाते हैं, खलीफा राशिद है। उनका पूरा नाम क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान बिन हकम। और हकम वो है जिसके ऊपर रसूलुल्लाह ने लानत की हुई है, लेकिन लानत का हिस्सा उमर बिन अब्दुल अजीज तक नहीं पहुंचा। जो अक्सर पूछे होते हैं कुरान में अल्लाह ने कहा यहूदियों पे क़यामत तक के लिए अल्लाह की जिल्लत और गजब है। जी उन पे है जो रविश इख्तियार करेंगे। आज भी अगर कोई यहूदी मुझसे मिजाज हो जाए तो उससे गजब उठ जाएगा। ये नहीं है कि अल्लाह ने उसे बांध दिया कि अब वो इस्लाम नहीं कबूल कर सकता। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने नहीं इस्लाम कबूल किया। आज भी कई यहूदी हैं जो मुसलमान हुए हैं। तो ये लानत कब्र तक तब जाएगी जब आप खुद लेके जाएंगे, वरना आप जब चाहे खत्म करें खुद। मुझे सिर्फ हदीस का सही कॉन्सेप्ट दें। जी कॉन्सेप्ट ले लें, रिकॉर्ड है। इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस, पूरा हदीस कैसे है। अब हुजूर के जमाने के बाद की बातें भी हदीस, जी हदीस ही होती हैं। हदीस का मतलब होता है बात। क्या मतलब होता है?
पाक। मुहद्दिसीन के यहाँ जो नबी इस्लाम ने फरमाया उसे कहते हैं हदीस मरफू, कि ये रसूलुल्लाह तक पहुंचती है। इरफा कहते हैं बुलंद करने को, जिस तरह हमारा ये सतह मुर्तफा है। एक होती है हदीस मौकूफ, जो किसी सहाबी का कौल होता है, जैसा कि मौला अली का कौल कि मेरी वजह से 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलू करके, एक मेरी दुश्मनी में। अब ये नबी इस्लाम से नहीं वो बयान कर रहे, खुद बयान कर रहे हैं अपने बारे में, इसे हदीस ही कहा जाता है, हदीस मौकूफ। इससे नीचे आ जाए ताबीन के अकवाल भी जो है वो भी अहादीस होती है। अगर वो नबी इस्लाम के रेफरेंस से बयान करें तो वो हदीस नहीं एक्सेप्ट होती जब तक वो सनद पूरी न करें, और जो उनका अपना कौल होता है ना, उसको एक्सपर्ट के तौर पे हदीस के तौर पर लिया जाता है। अब बुखारी मुस्लिम या हदीस की किताबें जो है ना, उनमें ये सारी चीजें आपस में गूंदी हुई होती हैं। हदीस मौकूफ, हदीस मरफू, हदीस मक्तू, ये सब की सब एक जगह जमा होती हैं एक हदीस के अंदर, इसीलिए उसे हदीस भी कहा जाता है। ओवरऑल हदीस मसलन 3748 जो बुखारी की हदीस है, उसमें क्या अल्फाज है कि हुसैन इब्ने अली का सर काट कर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने रखा गया। अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, मामलानत करने वालों की लानत, जिन्होंने हुसैन इब्ने अली को मजलूमाना शहीद किया, आमीन। तो वो छड़ी से उनके सर मुबारक को कुरेदने लगा और उनके हुस्न के बारे में कोई कलाम किया। अनस इब्ने मालिक वहां खड़े थे, उन्होंने फरमाया कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के हम शक्ल हुसैन इब्ने अली थे। ये है 3748, कि इसमें रसूलुल्लाह का क्या नाम नहीं आया है ना। दूसरा, ये हदीस से मरफू भी है इस हवाले से कि अनस इब्ने मालिक ने रसूलुल्लाह को न सिर्फ देखा है बल्कि 10 साल वुजू करवाया, और अनस इब्ने मालिक कह रहे हैं कि हजरत हुसैन इब्ने अली रसूलुल्लाह के हम शक्ल हैं। हुजूर का हम शक्ल होना, हुजूर के साथ शक्ल का मिलना, ये नबी इस्लाम की हदीस बन गई ना। हदीस सिर्फ हुजूर का फरमान तो नहीं है, जो आप करके दिखाएं वो भी हदीस है, जिसपे आप खामोश हो वो भी हदीस है, हदीस तकरीरी, हदीस कौली, हदीस फेली, नबी इस्लाम के हम शक्ल। हदीस मौकूफ भी है कि हजरत अनस इब्ने मालिक बयान कर रहे हैं, वो उनकी अपनी बात भी है, और वो वाकया नथी हो गया उसके साथ। लिहाजा ये सब का सब इकट्ठा हो गया बुखारी में, और सनद एक ही है, सनद एक है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं इसका टुकड़ा ले लूं कि हुसैन जो है वो रसूलुल्लाह के हम शक्ल थे, और बाकी मैं जुमला छोड़ दूं कि हुसैन का सर काट के सामने रखा गया। क्यों छोड़ेंगे? रावी तो एक ही है जो बयान कर रहा है, समझ आई बात की। उसी रावी पे एतबार करके आपने हुजूर की बात मान ली, अनस इब्ने मालिक की बात मान ली, वो पूरा वाकया जो बयान कर रहा है वो कहने मैंने आधा वाकया छोड़ देना है, ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए सारे को हदीस कहा जाता है। और ये तारीख कह के इसे झुटला नहीं सकते। तारीख की सबसे ऑथेंटिक बुक कुरान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने भाइयों के साथ जो मामला हुआ, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम आप समझ लें ऑलमोस्ट 3000 साल पुरानी तारीख है। वो तो तारीख है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनसे हसद किया और वो फिर इस तरीके से मिस्र के हुक्मरान बने, ये पूरी तारीख है। तो तारीखी वाक़यात तो कुरान में भी आए हैं, क्यों हम बयान करते हैं? इबरत के। इस तरीके से बुखारी मुस्लिम में भी जो तारीख आई है इबरत के लिए बयान हो रही होती है, वो हदीस के तौर पे आती है, हदीस की नंबरिंग के तहत ही आती है। जैसे कुरान में ऐसी कोई तफरीक नहीं है कि तारीखी वाक़यात अलग कर दिए अल्लाह ने, ये कह के ये तो तारीख है। अब तख्ते बिल्कीस का जो एक वाक़या हुआ है, तारीखी वाक़या। इस तरीके से रोमन्स और पर्शियंस की जंग का जो सूरह रूम के स्टार्ट में जिक्र है, एक तारीखी वाक़या है ना। दोनों काफिर लड़ रहे थे, कोई मुसलमानों की जंग का जिक्र है। कुरान में ये क्या कर रहा है वाक़या? जो अल्लाह ने कहा है कि रूमी मगलूब हो गए पर्शियंस के हाथों और अनकरीब दोबारा से गालिब आ जाएंगे, इसमें दीन का कौन सा मसला बयान हुआ है? दोनों काफिर। एक तारीखी वाक़या आया है, एक प्रोफेसी के तौर पे, बाद में पूरी भी होगी। तो इस तरह अपना रिलेट किया करें। तो जो भी हदीस की किताबों में आता है, हदीस जब भी कोई साबी ताबी बयान करता है ना, वो किसी सर्कमस्टांसेस के ऊपर बयान करते हैं। जिस तरह मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में डाली हुई है कि हज़रत मुआविया ने अनाउंसमेंट की, माले गनीमत के जो सामान आए थे सोने और चांदी के, और फौजियों को कहा कि अपनी तनख्वाहों के एवज अपनी अपनी मर्जी के बर्तन उठा लो। तो वहां पे साहबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा नबी इस्लाम ने सोने के बदले सोने के कारोबार का मना किया, इल्ला 10 बदस्त हो और हम वजन हो। ये नहीं है कि एक फौजी की तनख्वाह जो है वो 100 दिनार के बराबर है और वो ऐसा सोने का लोटा उठा ले जो 150 दिनार का है, तो ये तो सूद लेगा वो। तो सारे फौजी रुक गए, लेकिन हज़रत मुआविया को गुस्सा आ गया। मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, उन्हें तो बुरा लगा कि मेरे हुक्म को, मैं हाकिम हूं और इस बंदे ने हदीस सुना के सबको साइड पे कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं भी तो इतना अरसा हुजूर के साथ रहा हूं, मैंने तो ऐसी कोई हदीस नहीं सुनी। वो साहबी इतने गुस्से में, उन्होंने कहा मुझे अंधेरी रात के टुकड़े में जंगल में तुम्हारे लश्कर से लादा होना पड़ जाए मैं गवारा करूंगा, लेकिन जो कुछ मैंने खुद हुजूर से सुन रखा है उसे बयान करने से बाज नहीं आऊंगा। हाँ, ये वो हदीस बयान कर। अब ये पूरा एक वाकया हुआ है ना,
اب آپ کے اس واقعے میں جو کچھ حضرت معاویہ کے فوجیوں نے کیا حضرت معاویہ کے کہنے پہ اور وہ صحابی نے حدیث سنائی اور وہ سارے بیک فٹ پہ چلے گئے، یہ واقعہ چھوڑ دیں، بس آپ اتنا حصہ بیان کریں کہ سونے کے بدلے سونے کا کاروبار منع ہے۔ بھائی یہ واقعہ جب بیان کریں گے، یہ امپلیمنٹ جس جگہ پہ ہوا ہے وہ تو بتائیں گے نا۔ ویسے تو بڑا شوق ہے تو شان نزول دسو، حدیثاں دا شان نزول نہ تو دسیے کہ انس نے کب یہ حدیث بیان کی کہ حسین جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کے ہم شکل ہیں، جب تمہارا جو ماموں کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد وہ ان کے چھڑی مار رہا تھا ان کے سر مبارک میں، اس وقت انہوں نے یہ حدیث سنائی ہے۔ تمہیں نہ بتائیں انج تے بڑا شان نزول دا شوق جے تے شان نزول ہوندا جے نا انہاں حدیثاں دا، جتے جتے تواڈے بڑے نے کام پایا اوتھے اوتھے حدیثاں سناندے سن، تو پھر وہ سارے واقعے کو محدثین ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس پورے کو حدیث ہی کہا جاتا ہے، حدیث ود تفسیر۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ ساری باتیں میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے مثالیں دے کے ترتیب سے نا کوئی 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، انٹروڈکشن آف حدیث۔ اس میں منکرین احادیث کے بھی جوابات ہیں، ناسبیوں کے بھی جوابات ہیں، ساروں کے جوابات ہیں۔